हेलो एवरीवन। सो गाइस हम आ चुके हैं हमारे 31st वीडियो पे। और गाइस आज के इस वीडियो पे हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है डीमेटेरियलाइजेशन एंड रीमेटेरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज़। अगर मैं बेसिक वन वर्ड में बताऊं गाइस, डीमेटेरियलाइजेशन वो होता है जब हम फिजिकल शेयर्स को डिजिटल शेयर्स में कन्वर्ट कराते हैं, उसको हम डीमैट भी कहते हैं। रीमेटेरियलाइजेशन यानी कि डीमैट में जो हमारे पास डिजिटल सिक्योरिटीज थी अब उसको वापस से फिजिकल सर्टिफिकेट में कन्वर्ट कराते हैं। तो चलिए इसका क्या डेफिनेशन है पहले हम वो पढ़ते हैं इस वर्कबुक में, देन हम उसको चैट जीपीटी की मदद से सिंपल लैंग्वेज में अंडरस्टैंड करेंगे। सो dematerialization is the process of converting securities held in physical form into holding in book entry, that is इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। फिजिकल फॉर्म से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डिकन्वर्ट कराने को हम कहते हैं डीमेटेरियलाइजेशन। In demat form, one investor's shares are not distinguished from another investor's shares, and these shares do not have a distinctive number, folio number, or certificate number. SEBI regulation require a company making a public issue of shares to enter into an agreement with all the depositories to dematerialize its shares so that investors can given the option of holding the shares in dematerialized form. हम इसको करेंगे यहाँ से कॉपी, जाएंगे चैट जीपीटी में, पेस्ट करेंगे, एक्सप्लेन इन लेमैन लैंग्वेज विथ एग्जाम्पल। तो चलिए अब हम देखते हैं। डीमेटेरियलाइजेशन इज लाइक टर्निंग अ पेपर डॉक्यूमेंट इनटू अ डिजिटल फाइल इंस्टेड ऑफ होल्डिंग फिजिकल पेपर सर्टिफिकेट फॉर योर शेयर्स। बिकॉज उसमें क्या होता है, घूमने का चांस होता है, डैमेज होने का चांस होता है, राइट, फिजिकल पेपर में। तो हम क्या करते हैं, द ओनरशिप ऑफ द शेयर्स इज रिकॉर्डेड इलेक्ट्रॉनिकली इन योर अकाउंट। दिस मेक इट ईजियर, faster and safer to buy, sell or transfer share. Example: imagine you buy a share of a company. In the old days, you would receive a physical certificate as a proof of ownership. This certificate could get lost, damaged, or stolen, and transferring them was a lengthy process. Now, with decentralization, you open a demat account like a bank account for shares with a broker or depository. If you hold physical share certificate, you can submit them and they will convert into electronic form and add it to your demat account. Once your shares are in electronic form, they don't have any unique number like the old certificate. All shares of the same company looks the same in the system, just like money in a bank account. Example: if you buy 50 shares of Tata Motors, these shares are added to your demat account in digital form. When you sell these shares, they simply deducted from your account and that to your buyer account. Not physical paper are needed. This system is required by SEBI, the stock market regulator, for companies issuing new shares, ensuring every investor can choose to hold their shares electronically. Simple. अब आता है guys rematerialization. Okay, rematerialization is a reverse of dematerialization and is the process of converting securities held in electronic form into physical form. On request of investors, securities on rematerialization are allotted in physical form with distinctive number in place of the securities held electronic in book entry with from with a depository, entry form with a depository. चलो हम इसको वापस से लेमन लैंग्वेज में समझते हैं। with example, चलिए। So rematerialization is the opposite of dematerialization. It's like turning a digital file back into a physical document. If you have shares stored electronically in your demat account but want them as physical paper certificate, you can request rematerialization. यानी आपके पास ऑलरेडी डिजिटल फॉर्म में सर्टिफिकेट हैं, आपको पेपर फॉर्म में चाहिए, आप रिक्वेस्ट कर सकते हो किसका, रीमेटलाइजेशन का। Example: let's say you have 100 shares of Infosys in your demat account. These shares are recorded digitally, making them easy to buy, sell, or transfer. But for some reason, you decide you want to hold them in as physical certificates, maybe for safekeeping or personal preference. Here's how rematerialization works.
You contact your broker or depository participant and submit a rematerialization request. The DP processes your request and informs the company or registrar that you want physical certificates. The company issues new paper certificates for your shares, each with a unique certificate number and other details. Now, instead of seeing those 100 shares into your demat account, you receive paper certificate in the mail representing your ownership of Infosys. However, this process is rare these days since electronic shares are more secure, convenient, and widely accepted. Rematerialization is mostly done in someone specifically prefers or requires physical certificate for legal or personal reasons. तो गाइस ये हो चुका है डीमेटलाइजेशन एंड रीमेटलाइजेशन। अब कुछ सैम्पल क्वेश्चंस हैं एमसीक्यूज टाइप, वो एक बार देख लेते हैं। हमने बिकॉज पर चैप्टर पढ़ा है गाइस, तो ये तो हमारे लिए बहुत इजी होना चाहिए। एज पर SCRA, the term securities include which of the following? Government securities, derivatives, shares, receipts and bond. ये गाइस ये हमने कहाँ पढ़ा था, इस कुछ याद आ रहा है? ये हमने स्टार्टिंग ऑफ द इस चैप्टर को जब हमने स्टार्ट किया था उस टाइम पे हमने इस चीज़ को पढ़ा था। रुको गाइस मैं दिखाता हूँ यहाँ पर। सो दिस पेज SCRA यानी सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, तो इसके अकॉर्डिंगली क्या है, ठीक है। तो पेज 49, so government securities, derivative, shares, receipt and all of the above securities contract regulation act, ठीक है। इसके अकॉर्डिंगली क्या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, डेरिवेटिव, शेयर्स, ये सब भी ऑल ऑफ द अबव, ये सब की सब सिक्योरिटीज में आते हैं। along with SEBI and other regulatory Along with SEBI and other regulators Companies Act, RBI also registered the equity share market. RBI also regulates the equity share market as along with SEBI and other regulators under Companies Act. RBI also regulate equity share market. इसका आंसर स्टेट विद ट्रू और फॉल्स। फॉल्स, आरबीआई क्यों शेयर मार्केट रेगुलेट करेगा भाई, शेयर मार्केट तो सेबी रेगुलेट करता है। Where the entire face value of the debenture is converted into equity shares, it is known as fully, partly, optional, none of the above, fully convertible। entire हो रहा भाई, fully convertible होगा। Depository receipts which are issued in India and listed on Indian Stock Exchange, okay, with foreign stocks or underlying shares is known as ITR, simple। चलो गाइस अब हम आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर पे, जिसका नाम है टर्मिनोलॉजीज इन इक्विटी एंड डेट मार्केट। सो गाइस आई एम वेरी हैप्पी कि आप हम थर्ड चैप्टर में आ चुके हैं, और थर्ड चैप्टर का क्या वेटेज है एक बार हम वो भी देख लेते हैं कि थर्ड चैप्टर कितना वेटेज कंटेन करता है। सो अभी तक हमारा हो चुका है 2 चैप्टर, ओके। सो 3 मार्क्स का एक चैप्टर का वेटेज है, दूसरे चैप्टर का 4 मार्क का वेटेज, यानी 7 मार्क का हो चुका है। सो टर्मिनोलॉजी इन इक्विटी एंड डेट मार्केट ये भी 4 मार्क का वेटेज कैरी करता है। फटाफट से हम इसको भी कवर अप कर देंगे। आपका इसमें वीडियो फटाफट बनाने होंगे जिससे हम 24 दिसंबर 2024 तक कंप्लीट कर पाएँ इस पूरे इस पूरे सीरीज़ को, ओके। तो टर्मिनोलॉजीज एंड इक्विटी एंड डेट मार्केट, इसमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है? आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर यू शुड नो अबाउट टर्मिनोलॉजीज यूज्ड इन इक्विटी मार्केट, इन डेट मार्केट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स एंड देयर फीचर्स। चलो बहुत अच्छी बात है, मुझे सीखना था वैसे भी। तो सिक्योरिटी मार्केट इनेबल इन्वेस्टर्स टू डिप्लॉय देयर सरप्लस फंड इन इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट दैट आर predefined for their features, issued under regulatory supervision and in most cases liquid in secondary market, ठीक है। बेसिकली ये लोग ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे इन्वेस्टर्स अपने सरप्लस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं किसके अंदर, सिक्योरिटीज़ के अंदर, जो और जिसको रेगुलेट किया जाता है मार्केट में, लिक्विडिटी भी होती है और लिक्विडिटी सेकेंडरी मार्केट प्रोवाइड करता है। देयर आर two broad type of security that are issued by seekers of capital from investors। दो टाइप की सिक्योरिटी मोस्टली इशू होती है, एक होती है इक्विटी और दूसरा होता है डेट। व्हेन अ बिजनेस नीड कैपिटल टू फंड इट्स ऑपरेशन एंड एक्सपेंशन, इट मेक्स अ चॉइस बिटवीन दिस टू टाइप ऑफ सिक्योरिटीज, राइट। इक्विटी कैपिटल इज अवेलेबल फॉर द कंपनी टू यूज एज लॉन्ग एज इट इज़ नीडेड, ठीक है। इक्विटी कैपिटल जब उन्होंने अगर रेस किया तो अब कंपनी हम जब तक चाहे वो पैसा यूज़ कर सकती है। डेट कैपिटल विल हैव टू बी रिटर्न आफ्टर द स्पेसिफाइड टाइम। डेट कैपिटल यानी अगर कुछ कर्ज ले रहे हैं तो उसे चुकाना पड़ेगा विथ इंटरेस्ट। इक्विटी इन्वेस्टर्स डू नॉट एंजॉय एनी फिक्स्ड रिटर्न
ओके। और रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल इन्वेस्टेड, इक्विटी इन्वेस्टर को फिक्स रिटर्न नहीं आता है, इन्हें कैपिटल एप्रिसिएशन मिलता है। डेट इन्वेस्टर को क्या मिलता है, डेट इन्वेस्टर अर्न अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल विथ मेच्योरिटी। तो उन्हें इंटरेस्ट मिलता है और उनका इन्वेस्टेड अमाउंट यानी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो वापस मिल जाता है। इक्विटी इन्वेस्टर्स आर ओनर ऑफ द बिजनेस, डेट इन्वेस्टर्स आर लेंडर ऑफ द बिजनेस। सिंपल, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है वो ओनर्स है और डेट इन्वेस्टर्स ये बे ये नहीं है, बेसिकली लेंडर्स है, यानी कि कर्ज कर्ज देने वाले हैं ये कंपनी को। ठीक है। इक्विटी इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, डेट इन्वेस्टर डू नॉट। देखो, जो ओनर है वही मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर पाएगा, तो इक्विटी इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेट करते हैं, उनके पास वोटिंग राइट होती है। रेसिडुअल प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस बिलोंग टू इक्विटी इन्वेस्टर्स। रेसिडुअल प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस बिलोंग्स टू इक्विटी इन्वेस्टर। अब ये रेसिडुअल प्रॉफिट्स क्या होता है, एक बार ये चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आए, पेस्ट करें, रेसिडुअल प्रॉफिट मीन्स, what is residual profit? Residual profit refers to profit remaining after all costs and expenses have been deducted from a company's revenue, including the cost of capital. If the money left over after the company has paid all its operating expenses, tax, and return expected by investors, cost of therefore this profit are considered to be true earnings of a company, and they represent the income that exceeds the required return on invested capital. Example, let's say a company generated revenue $1 million in a year. After subtracting operating cost, tax, interest, the company is left with 2 lakh dollar in profit. However, the company also need to pay a return of 10% on its invested capital, that is 5 lakh dollar. This would amount to $50. So the residual profit would be profit after expenses, that is 2 lakh dollar less the cost of capital $50,000। ओके, ये कैसे है $50,000? हम टू, मतलब लेस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी कि $2 lakh माइनस $50,000 इज इक्वल टू $1,50,000। $150,000 इज द रेसिडुअल प्रॉफिट। इट रिप्रेजेंट द टू अर्निंग्स अवेलेबल टू शेयर होल्डर आफ्टर पेइंग ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ग्रेट। तो ये होता है रेसिडुअल प्रॉफिट। तो बेसिकली रेसिडुअल प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस बिलोंग टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, डेट इन्वेस्टर्स claim is restricted to the periodic fixed coupon and principal repayment on maturity। सिंपल, प्रॉफिट मिलता है इक्विटी ओनर को, डेट ओनर को क्या मिलता है, पीरियोडिक कूपन मिलता है जिसको हम इंटरेस्ट कहते हैं, और उनको प्रिंस का पेमेंट हो जाता है उनके प्रिंसिपल अमाउंट का। Due to this fundamental differences in equity and debt securities, they are seen as two distinct asset classes between which investors make a choice. Equity represents as risky, long-term growth-oriented investment that can show a high volatility in performance depending on how the underlying business is performing. There is no assurance of return to the equity investors since the value of the investment is bound to fluctuate. राइट, इक्विटी इन्वेस्टर्स की कोई गारंटी नहीं होती है बिकॉज शेयर का प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है। बट यहाँ पे क्या होता है गाइस, अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करोगे, अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करोगे, डेफिनेटली बहुत अच्छे रिटर्न्स आपको मिलेंगे। ये बोलने की बात नहीं, आपको पता ही है। कोई भी अच्छी कंपनी का आप लॉन्ग टर्म का ग्राफ उठा करके देख लो, 5 साल एंड अबाव का, तो उसने बहुत अच्छे रिटर्न दिया है। राइट, डेट रिप्रेजेंट्स अ रिलेटिवली लोअर रिस्क स्टेडी income oriented investment. It guarantees a steady rate of return provided the business remains profitable and does not default on its payment. तो बेसिकली डेट क्या होता है, कम रिस्की होता है और इसमें आपको रेगुलर रिटर्न्स मिलते रहते हैं इन फॉर्म ऑफ कूपन, और इसमें सिर्फ एक डिफ़ॉल्ट का रिस्क है, उसके अलावा इतना वॉलेटिलिटी का इसमें कुछ रिस्क नहीं है। Since all residual benefit of deploying capital in a profitable business, since all residual benefit of deploying capital in a profitable business go to the equity investors, the return of equity investors is likely to be higher than that of the debt investors. So basically यहाँ पे वही फंड आ जाता है, higher the risk, higher the return. तो ये लोग कहना ये चाह रहे हैं कि जो इक्विटी इन्वेस्टर होते हैं उनके रिटर्न्स कंपैरेटिव टू डेट इन्वेस्टर से ज़्यादा होते हैं। तो गाइस, अगर किसी का टाइम होराइजन लॉन्ग टर्म है, ठीक है,
तो वो बेसिकली इक्विटी में ही इन्वेस्ट करेंगे, बिकॉज इक्विटी में ज़्यादा रिटर्न जनरेट होता है। बट अगर किसी का शॉर्ट टर्म टाइम होराइजन है, बेसिकली शॉर्ट टर्म में कैसा है कि या लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो, कैपिटल प्रोटेक्शन इज़ द मेन थिंग, राइट। एप्रिसिएशन तो बाद में आता है। तो शॉर्ट टर्म के लिए कोई इक्विटी मार्केट में डाल देगा, मार्केट नीचे चला गया तो उसका तो काम खत्म, वो लॉस लेकर के बाहर निकलेगा। बट अगर कोई शॉर्ट टर्म के लिए है, उसको पता है शॉर्ट टर्म मीन्स कि आने वाले 1 साल में मुझे पैसों की रिक्वायरमेंट है, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ खरीदना है या कुछ पेमेंट करना है, राइट। तो शॉर्ट टर्म के लिए वो डेट मार्केट में पैसा डाल सकता है, भले ही उसे कम रिटर्न मिलेगा बट उसका पैसा सेफ रहेगा। इसलिए यही कहना चाह रहे हैं कि इक्विटी इन्वेस्टर को ज़्यादा रिटर्न मिलता है बट लॉन्ग टर्म में कंपैरेटिवली टू डेट इन्वेस्टर्स। Choosing between equity and debt is a trade-off. Is a trade-off. Choosing between equity and debt is a trade-off. Investor desire low risk and willing to accept a low stable return choose debt. जिनको कम रिस्क चाहिए और कम रिटर्न चलेगा बट स्टेबल रिटर्न चाहिए, वो डेट की तरफ जाते हैं। इफ़ दे सीक अ हायर रिटर्न दे मस्ट नॉट बी एबल टू अर्न इट विदाउट टेकिंग on the additional risk of the equity investment. Most investor tends to allocate their capital between these two, depending on their accepted return, depending on their expected return, their investing time period, the risk appetite and their needs, राइट। मोस्ट इन्वेस्टर क्या करते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट नीड को जानते हैं, उनका रिस्क एपेटाइट जानते हैं, तब जा करके वो ये दोनों सिक्योरिटी यानी इक्विटी और डेट में से एक चूज़ करते हैं उन्हें किस में इन्वेस्ट करना चाहिए। This chapter, the feature of equity and debt instrument along with other instrument which borrow features from equity and debt। तो हम टर्मिनोलॉजी जानने वाले इस चैप्टर में, इक्विटी की क्या टर्मिनोलॉजीज होती है और डेट की क्या टर्मिनोलॉजीज होती है। तो इस नेक्स्ट वीडियो से हम एक एक करके स्टार्ट करेंगे टर्मिनोलॉजीज जानना। सो बेसिकली इसमें यही था कि दो टाइप की सिक्योरिटीज़ होती है, इक्विटी एंड डेट सिक्योरिटी। उसके अंदर क्या क्या टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती है हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। सो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई गाइस। कुछ भी डाउट है, क्वेरीज है, कंसर्न है, प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।